بھارت کی آبی جارحیت جاری، چناب میں مزید پانی چھوڑ دیا۔ دریائے چناب اور ستلج میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، سینکڑوں دیہات زیر آب، 38 لاکھ افراد متاثر، 13 لاکھ ایکڑ پر فصلیں تباہ، ہیڈ سدھنائی ہو گئے۔ گنڈا سنگھ والا پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، ملتان شہر میں سیلابی صورتحال سنگین، ہیڈ محمد والا پر انتظامیہ کی جانب سے پولیس نفری بھی بڑھا دی گئی۔ پانی بریچنگ پوائنٹ سے 3 کلومیٹر تک آگے آ گیا۔ ہیڈ خان کی، ہیڈ قادر آباد، چنیوٹ برج پر بھی انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ ملتان روڈ پر رنگو نہر میں 2 مقامات پر شگاف پڑ گئے، درجنوں آبادیاں زیر آب۔ سدھنائی کے مقام پر راوی کا سیلابی ریلا شامل ہونے سے دریائے چناب میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ دریائے چناب میں ہیڈ خان کی قریب پہلا شگاف ڈالنے کی تیاریاں۔ جلال پور بھٹیا میں کئی دیہات متاثر، ہیڈ بلاکی کے مقام پر پل ٹریفک کے لیے بند۔ دریائے ستلج میں چشتیاں کے مقام پر پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے 25 معزہ جات کی 200 بستیاں زیر آب۔ ٹوبا ٹیک سنگھ اور خانیوال میں پریشان کن صورتحال، خانیوال میں سیلاب سے 2 لاکھ سے زائد افراد متاثر، ہزاروں گھر، 1 لاکھ سے زائد رقبہ پر کھڑی فصلیں زیر آب، سینکڑوں گھر زمین بوس ہو گئے۔ گجرات میں قیامت خیز بارش، 577 ملی میٹر بارش سے شہر پانی میں ڈوب گیا۔ اربن فلڈنگ، گھر، فصلیں، دکانیں، بازار سب پانی کے نظر۔ برساتی نالے بکھرنے سے کئی دیہات ڈوب گئے، فصلیں تباہ، شہری علاقوں میں پانی کھڑا ہو گیا۔ ڈسٹرکٹ جیل اور احاطہ سیشن کورٹ میں بارش کا پانی داخل، قیدیوں کو لاہور اور گجرانوالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ ضلع بھر کے تعلیمی ادارے بند، پانی کی نکاسی کے لیے گجرانوالہ سے بھی مشینری اور گاڑیاں بھجوا دی گئیں۔ جلال پور جٹا میں 2 منزلہ خالی عمارت گر گئی۔ کمشنر گجرانوالہ نے بتایا کہ مدینہ سیدہ کے قریب حفاظتی بند باندھ کر پانی کو برساتی نالے میں موڑا جا رہا۔ پانی کی نکاسی کے لیے گجرانوالہ سے بھی مشینری اور گاڑیاں بھجوائی گئی ہیں۔ دریائے چناب کے بفرے ریلے ملتان تک پہنچ گئے۔ سیالکوٹ، گجرات، حافظ آباد، سرگودا، چنیوٹ، جھنگ اور خانیوال کے متعدد علاقے زیر آب۔ پانی کا بہاؤ 6 لاکھ کیوسک سے تجاوز کرنے پر خیڈ خانکی کے قریب پہلا شگاف ڈالنے کی تیاریاں۔ جلال پور بھٹیا میں کئی دیہات متاثر، شکر گڑھ کوٹ نینا میں دریائے راوی اور نالا بھین کے دوسرے سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی۔ منڈی خیل کے قریب نارووال روڈ زیر آب، ٹریفک معطل۔ سیلابی ریلے سے ساتوال، علی لنگا اور قطروال سمیت 20 سے زائد دیہات زیر آب۔ ہیڈ بلاکی کے مقام پر پول ٹریفک کے لیے بند، کوٹ محمد میں نشیبی علاقے دوبارہ زیر آب، پانی 21 سے زائد دیہات میں داخل۔ دریائے چناب کا سیلابی پانی پنڈی بھٹیا کے متعدد علاقوں میں داخل۔ گورنمنٹ ٹیکنیکل کالج اور تھانہ صدر پولیس پیٹرولنگ چوکی بھی زیر آب۔ ہیڈ محمد والا کے مقام پر مسلسل پانی کی سطح میں اضافہ، بیشتر بستیاں سیلاب کی نظر۔ مشیر شاہ کے قریب فلڈ بند ٹوٹ گیا، قریبی آبادیاں متاثر۔ بند ٹوٹنے سے مرکزی شاہراہ کی جانب پانی کا دباؤ بڑھنے لگا، مرکزی شاہراہ پر ٹریفک متاثر ہونے کا امکان۔ مرکزی روڈ ملتان سے مظفر گڑھ، ڈی جی خان اور دیگر علاقوں کو ملاتا ہے۔ دریائے راوی میں کبیروالا ہیڈ سدھنائی پر اونچے درجے کا سیلاب، پانی اوور فلو ہو کر رابطہ نہروں میں داخل۔ سدھنائی کے نال میں گنجائش سے 4 گنا زیادہ پانی آ گیا۔ پانی کے شدید دباؤ سے شگاف پڑ گیا، بڑی آبادی پانی میں ڈوب گئی۔ سیلابی پانی قادر پورہ میں بھی داخل۔ ہیڈ سدھنائی کے مقام پر راوی کا سیلابی ریلا شامل ہونے سے دریائے چناب میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ مائی سفرہ کے مقام پر بند کو چوتھا کٹ لگانے سے 25 دیہات زیر آب۔ کبیروالا کے علاقے کنسرگانہ، کتالپور اور بربیگی میں دریائے راوی کا پانی داخل، پانی تیزی سے گھروں اور کھیتوں میں داخل۔ لودھرا میں بھی 5 بستیوں کے بند ٹوٹ گئے، پانی فصلوں میں داخل۔ ٹوبا ٹیک سنگھ کے 75 دیہات متاثر، متعدد بستیاں زیر آب آ گئیں۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کر رہے ہیں۔ دریائے ستلج کا سیلاب بے قابو، چشتیاں میں 200 بستیاں ڈوب گئیں، ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ۔ قصور میں بھی سیلابی ریلیں تباہی مچا دی، درجنوں گھر پانی کی نظر۔ پاک پتن، چشتیاں، میلسی، جلال پور، سیلابی پانی نے کئی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مکینوں نے چھتوں پر چڑھ کر جانیں بچائیں۔ بہاول نگر میں بند ٹوٹ گیا، قادری مل، قمر دین بودلا اور بستی بہاون شاہ زیر آب، درجنوں گھر متاثر۔ سیلابی پانی کا ریلا بائی پاس کمال چوک تک پہنچ گیا، مزید علاقے خطرے میں آگے۔ ہیڈ اسلام پر درمیانے درجے کا سیلاب، وہاڑی اور ملتان کے متعدد علاقے زیر آب، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں اور متعدد گھر تباہ۔ مکین کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار، اہل علاقہ اپنی مدد آپ کے تحت جان بچانے کی کوششوں میں مصروف۔ پلاسٹک کے ڈرموں کو جوڑ کر خود ساختہ کشتیوں کے ذریعے نقل مکانی۔ وہاڑی میں 15 سے زائد سرکاری اسکول ریلے کی نظر۔ کبیروالا میں عبدالحکیم ریلوے کراسنگ برج زیر آب آ گیا۔ سیلاب صورتحال کے پیش نظر شورکوٹ خانیوار ریلوے ٹریک بند ہو گیا۔
हाइब्रिड सिस्टम डिलीवर कर रहा है, इसमें कोई चीज ढकी छुपी नहीं। बार बार कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के पिछले लॉन में बैठ के कोई फैसला नहीं हो रहा। पुराने हाइब्रिड सिस्टम में मुनाफिकत थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू कहा कि मेरे बयान पर मेरे गिर्द कोई घेरा तंग नहीं होता, मुझ पर कोई प्रेशर नहीं, मुझे कहीं से हीट नहीं आ रही। मुझे पार्टी लीडरशिप जो हुक्म करेगी इसकी पाबंदी करूंगा। पार्टी क़यादत ने कभी राय के इजहार से नहीं रोका। मुझे घर भेजने की कयास रही हैं। जनरल बाजवा को हमने बरमला एक्सटेंशन दी, वो जमहूरियत को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। अब ऐसा नहीं, मौजूदा निजाम नताइज दे रहा है। पाकिस्तान में हर सतह पर करप्शन सरायत कर चुकी है। पैसों से असम्बली की नशिस्तें हासिल की जाती हैं। हकायक छुपाए नहीं जा सकते, चाहे कितने भी नागवार हों। सिस्टम में मौजूद खामियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हुकूमत ने कई अच्छी कामयाबियां हासिल की हैं, मगर कुछ महाज पर अभी भी चैलेंज हैं। इख्तलाफात घर के अंदर हल हों, मगर मसाइल को छुपाना मुमकिन नहीं। हम खामोश रहेंगे तो मसला मजीद बढ़ता जाएगा। अवाम को हकायक जानने का हक है। हाइब्रिड निज़ाम का मतलब आमरीत है। आगे बढ़ने के लिए आइन पर अमल करना होगा। आइन की बुनियाद यह है कि हक हुक्मरानी अवाम का है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिल्ला का सेमिनार से खिताब कहा, 77 साल की अदलिया की तारीख मेरे लिए काबिल फ़ख्र नहीं। मुल्क में अगर आइनी हुकूमत नहीं और मैं बतौर जज कुछ नहीं कर रहा, हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि वो आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। मैंने हाई कोर्ट के कई फैसलों में लिखा कि कानून की बालादस्ती नहीं है। जजेस ने अपने आप को इस्तेमाल होने दिया। एक शर्त यह है कि कोई इदारा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं करे। जो अवामी नुमाइंदे होंगे वो साफ शफाफ तरीके से मुंतखब होकर आएंगे। लेकिन ऐसा आज तक सिर्फ हमारा ख्वाब ही है। जहां भी आमरीत होती है इसमें भी इलेक्शन होते हैं। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत पार्लिमानी एक्ट के तहत 5 साल हुई, इसे तोसी नहीं कह सकते। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की पंजाब असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत को बिला वजह मौजू बहस बनाया जा रहा है। आर्मी चीफ की अब मुद्दत 5 साल के लिए है और ये 2027 में खत्म होगी, जिसके बाद फिर एक्सटेंशन का सवाल उठेगा, जिस पर उस वक्त की हुकूमत को फैसला करना होगा। 9 मई, 24 और 26 नवंबर को सिविल नाफरमानी की कोशिश की गई। मार्के हक पर भी इस तरह की साजिश रचाई गई, जिसकी हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर ऐसी कोई सूरत पैदा होती है तो पाकिस्तान के वजूद को खतरा लाहक हो सकता है। पाकिस्तान की हिफाजत और सालमियत के लिए सियासी जमात हो या फिर कोई धड़ा, उसे पूरी ताकत से कुचलना होगा। पाकिस्तान में आईनी हुकूमत नहीं, आमरीत नाफिज है। जस्टिस अतर मिल्ला ने भी आज हाइब्रिड निज़ाम की संगीनी बयान की। सेक्रेटरी तलात PTI शेख वकास अकरम की ABN के प्रोग्राम तजिया में गुफ्तगू। कहा कि हम पहले दिन से कह रहे थे कि मुज़ाकरात सिर्फ दिखावा था। बानी PTI का निज़ाम आदिल, आइन और जमहूरियत से मुतालिक मौक़िफ़ वाज़ेह है। कुछ जजेस अदालती आज़ादी और अवामी हुकूक के लिए सरगर्म हैं। एहतजाजी प्लान के तहत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा मोबिलाइजेशन हो रही है। पंजाब में सियासी सरगर्मियों पर क्रैकडाउन का सामना है। सितंबर के जलसों के हवाले से बानी PTI अहम ऐलान करेंगे। चीन ने CPEC के तहत पाकिस्तान में $35 अरब की सरमायाकारी की। पाक चीन दोस्ती समंदर से गहरी, लोहे से मजबूत और शहद से मीठी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान की माशियत दुरुस्त समत में गामजन है। चीन ने हमेशा हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस दो तरफा मजबूत दोस्ती के आकाश है। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात दिहाइयों पर मुहित हैं। पाकिस्तान चीन के साथ CPEC के दूसरे मरहले में ताउन चाहता है। CPEC की बदौलत पाकिस्तान में 3 साल में तवानाई बहरान पर काबू पाया गया। CPEC की बदौलत ही ज़राअत और सनत बहाल हुई। चीन के ताउन से CPEC के अलावा ऑरेंज टाइन और मुख्तलिफ डैम्स की तामीर हुई। पाकिस्तान IT, मसनूई जहानत और कानकुनी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन का ख्वाहां है। खुसूसी इक़्तिसादी जोन चीन के सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मौके फराहम करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीन का सरकारी दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। बीजिंग एयरपोर्ट पर चीनी हुकाम, पाकिस्तानी सफीर, सिफारती अमले ने वज़ीर-ए-आज़म को अलविदा किया।
पंजाब में सैलाबी सूरत-ए-हाल, कौमी असम्बली के 5 और पंजाब असम्बली के 4 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी। NA 66 वज़ीराबाद, NA 96 फैसलाबाद, NA 129 लाहौर, NA 143 साहिवाल, NA 104 फैसलाबाद, जबकि PP 73 सरगोधा, PP 87 मियांवाली, PP 98 फैसलाबाद, PP 203 साहिवाल में ज़िमनी इंतखाबात मौखिर। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सैलाब की वजह से पोलिंग स्टाफ की दस्तयाबी मुमकिन नहीं। मवासलाती निज़ाम, सरकारी और निजी इमारतें, स्कूल और पोलिंग स्टेशन शदीद मुतासर हो चुके हैं। सिविल इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारे रिलीफ और बचाव के कामों में मसरूफ हैं, जिसकी वजह से इंतखाबात की सिक्योरिटी और इंतजामात यकीनी बनाना मुमकिन नहीं। जैसे ही हालात मामूल पर आएंगे, ज़िमनी इंतखाबात दोबारा शेड्यूल किए जाएंगे। उजाला पंजाब का लाहौर में चौहंग रिलीफ कैंप का दौरा, मरियम नवाज खातून और बच्चों में घुल मिल गईं। फ्लड रिलीफ इकदाम पर ब्रीफिंग ली। पंजाब की तारीख में पहली बार क्लिनिक ऑन बोर्ड सर्विसेज का आगाज। उजाला मरियम नवाज की पंजाब हेल्थ टीम सूबे भर के सैलाब मुतासर इलाकों में मसरूफ अमल। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास, पंजाब हुकूमत का गंदम, आटा और रोटी के निर्ख बरकरार रखने के लिए सख्त इकदाम का फैसला। फील्ड मिलों में गंदम का इस्तेमाल रोकने के लिए दफा 144 नाफिज। पीरा के SDOs को जहीरा अंदोजी के सदेबाब के लिए खुसूसी इख्तियारात तफवीज़। सैलाब के आड़ में आटे और रोटी के निर्ख बढ़ाने वालों के खिलाफ एक्शन की हिदायत। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मुतहरिक। मरियम नवाज ने कहा कि गंदम की जहीरा अंदोजी आवाम से दुश्मनी के मुतरादिफ है। सैलाब के आड़ में आटे और रोटी के निर्ख बढ़ाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। रोटी का निर्ख 14 रुपये और 20 किलो आटे का निर्ख 1810 रुपये से ज़ायद बढ़ना नहीं चाहिए। मुल्क भर में वक्फे से बारिशें होंगी। 6 से 8 सितंबर इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान। 7 से 9 सितंबर के दौरान बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश मुतवक्के। बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड। गहराई 10 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन थी। मरकज़ अफगानिस्तान का शहर जलालाबाद के करीब था। ज़लज़ले के झटके पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में भी महसूस किए गए। आवाम खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। फौरी तौर पर किसी जानी या माली नुकसान की इतला नहीं। जिना हाउस हमला केस में गिरफ्तार अलीमा खान के बेटे शारिस को रिहा कर दिया गया। जेल हुकाम ने शारिस को कोर्ट लखपत जेल से रिहा किया। इसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शारिस की जिना हाउस हमला केस में जमानत मंजूर की थी। पानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तो शाहाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। स्पेशल जज सेंट्रल FIA शाहरुख अर्जुमंद केस की समाअत करेंगे। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजीद गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करवाए जाएंगे। बानी और बुशरा बीबी के वकला की जानिब से गवाहान पर जीरा मुतवक्के। और 3 मुल्क की सीरीज पाकिस्तान ने UAE को 31 रन से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। 172 रन के ताक़ुब में UAE टीम 7 विकेटों पर 140 रन बना सकी। अली शाह के 68 रन। ग्रीन शर्ट्स ने 5 विकेट पर 171 रन बनाए थे। टॉप ऑर्डर फिर नाकाम। फरहान 16, साइम अयूब 11 और कप्तान सलमान आगा 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। फखर जुमान कुमदा बैटिंग 77 रन की इनिंग खेली।